اپنی مرضی سے کیا جائے تو اسے حق حاصل ہے کہ یہ کر لے. یہ کسی مخلوق کی مرضی کو چلانا چاہے تو اللہ تعالی نے اسے اختیار دیا ہے کہ کر لے. یہ رب کے باغی شیطان کے چیلنج کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کر لے. لیکن ساتھ میں یہ بھی رشتہ جتایا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں ہی خالق، میں ہی مالک، میں ہی رازق، سب کچھ میں تیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس کے سارے کرم ہیں، جس نے تیرے بھرم رکھے ہیں، باڈی کو، وجود کو، جسم کو، ساری نعمتوں کو بنا کے تجھے عطا کیا ہے. اگر اس کے در کو چھوڑ کے جائے گا تو کوئی سبب ضرور بتا کے جانا. ما غرک بربک الکریم، بیٹا گھر سے بھاگتا ہے تو ماں باپ پوچھتے ضرور ہیں کہ پتر وجہ کیا بنی. بیٹی گھر سے بھاگنا چاہتی ہے، عدالت میں نکاح کرنا چاہتی ہے تو ماں ایک دفعہ پوچھتی ضرور ہے کہ تیرا بوڑھا باپ، تیرے بھائی ان کی پگڑیاں، تیرے ماموں ان کی عزتیں، تیرا ددیال ننیال ان کی آبرو، جہاں ہم نے تیرا سوچ رکھا تھا وہ تیرا سسرال، ان کی کوئی عزت اور ویلیو ہے، ساری خاک میں کیوں ملا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. اللہ بھی پوچھتے ہیں میرے بندے، میں نے رحمتوں کے 100 حصے کر کے 99 تیرے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ما غرک بربک الکریم، تو پھر بھاگ رہا ہے. میں نے پوری دنیا تیرے لیے بنائی ہے، تو پھر بھی میرے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. میں نے سارے جہانوں کی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے اپنا محبوب تجھے دے دیا ہے، تو پھر بھی بھاگ رہا ہے. ما غرک بربک الکریم، جواب دے کے جا اگر ادھر ادھر جانا ہے. کس وجہ سے تجھے اس سے بڑھ کے کچھ ملا ہے؟ کوئی زیادہ حسن و جمال مل گیا ہے؟ کوئی زیادہ خیر خواہ اور مہربان مل گیا ہے؟ الذی خلقک، کدھر جا رہا ہے؟ جس کی طرف بھاگ رہا ہے اس نے تجھے پیدا کیا ہے. فسواک، رب کو چھوڑ کے جس کی طرف جا رہا ہے، کیا اس نے تیری آنکھوں کے ڈیلے برابر، ہاتھوں کی انگلیاں برابر، ایک پاؤں میں جوڑا لیتا ہے جا کے جوتا پہنتا ہے، دوسرا اسی نمبر کا برابر بنا ہوا، یہ سب تصویر کس نے کی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کون ہے کہ جس نے تجھے تیری ہر چیز مقام پہ رکھی ہے. عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ. اسلام نے انصاف کا لفظ متعارف نہیں کروایا، اور ہم نے انصاف کے نام پہ جتنی مار کھائی ہے شاید ہی کسی اور چیز پہ کھائی ہے. انصاف کا لفظ نصف سے ہے. نصف آدھے آدھے کو، ہاف کو کہتے ہیں. جب ہم انصاف سوچتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو بھی آدھا اور بیٹی کو بھی آدھا ملے. تیرے رب کا دین عدل کا ہے، اسے پتا ہے کہ بیٹی نے باپ سے بھی لینا ہے، بڑی ہو کے بھائی سے بھی لینا ہے، آگے شادی ہونی ہے تو اس نے شوہر سے بھی لینا ہے، ماموں سے بھی لینا ہے، ہر رشتے نے اس کو دینا ہے. لیکن بیٹے نے ہر جگہ خود دینا ہے. اس نے جو دیا عدل کیا. بیویوں کے درمیان اللہ نے کہیں بھی انصاف نہیں بولا، عدل کا بولا ہے. عدل کیا ہے؟ پہلی بیوی ہے، اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، بڑا پی ایچ ڈی میں ہے، چھوٹا ایم فل میں ہے، اس سے چھوٹا بی ایس میں ہے، اس سے چھوٹا میٹرک میں ہے. ایک نئی بیوی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی پڑھنے نہیں جا رہا. عدل کا معنی یہ تھا کہ بڑی کو اگر 5 لاکھ دے رہے ہو تو چھوٹی کو بھی دو.
इंसाफ का तकाजा तो यही है ना, जितने बड़ी को उतने छोटी को। फअदिलू इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, तेरे रब ने अदल का हुक्म दिया है। बड़ी के जिस बेटे की जितनी फीस है वो देना अदल, नहीं तो उसका कैरियर दाव पे है। उससे छोटे की फीस उससे कुछ कम है, उसे देना अदल। इस बड़ी के 5 बच्चे हैं, उनके खर्चे ज्यादा हैं, बड़ी है, बीमारी है, दीगर मसाइल हैं, तो इसको ज्यादा देना अदल है, और जितनी छोटी की जरूरत है उसे उतना देना वो अदल है। हमने यहां भी इंसाफ इंसाफ करके ऐसा गला दबाया है शरीयत का कि हम आज तक सीधे ही नहीं हो सकते। तहरीके इंसाफ के नाम पे भी हमने बड़ी उम्मीदें रखी, मगर जब नाम ही आपने शरीयत से नहीं उठाया होता तो आपके साथ अदल कौन करेगा। तहरीकें भी हैं, अदालतें भी हैं, जजेस भी हैं, वकला भी हैं, मगर सब क्या मांगते हैं? इंसाफ। अदल कोई नहीं मांगता, अदल कोई नहीं सीखता। अगर अदल सीखा होता, इंसाफ का तकाजा था 2 हैं दोनों को बराबर, अदल का तकाजा था जो हक पे है उसे पूरा दो, जो बातिल पे है उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिलना चाहिए। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, तेरे रब ने कमाल अदल कर दिया है। अल्लाह जी क्या अदल है? ये सर के बाल अगर पांव के नीचे तलवे पे होते कैसा था, कैसा फील होता? जगह जगह पे अड़ रहे होते, खींचे जा रहे होते। आंख के डेले ये थोड़ी के नीचे लगे होते। फील तो होता है ना जी, नाक मुंह पे क्यों रख दिए? कुछ ना कुछ निकल के मुंह में आता है, आगे मूछे क्यों रख दिए? ये नाक कितना अच्छा था कि कच्छ दे विच लगी हुंदी साइड ते, ना कोई वेंदा ना कुछ। अल्लाह कहते हैं अपनी सोचें, अपनी फिक्रें अपने पास रख। मैंने तेरे लिए पेशाब की जगह जहां रखी है, बोलो बराज की जगह जहां रखी है, तेरे घुटने तेरे पांव जिस ढंग में रखे हैं, फ़अदलक, ये मेरा अदल है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मेरे अदल का ये जहरी तौर पे तेरे सामने एक सरापा हुस्न है कि मैंने जो जहां मुनासिब समझा उसे वहीं लगाया और वो वहीं बराबर है। फी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तेरे रब ने जैसे चाहा बनाया, तरकीब दी, और तेरे रब की तरकीब कभी खराब नहीं होती। तो फिर किसको छोड़ के कहां भाग रहा है? हजरात, तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस आपको हर साल ये दावत देती है कि आपको इंसान होने के नाते एक मनहज मद्देनजर रखना चाहिए कि शरीयत का मनहज क्या है। लोग मसलकों की जंग लड़ रहे हैं, हर मसलक ये कह रहा है कि मैं जन्नती दूसरा जहन्नमी, और तेरे रब ने तुझे आवाज दी है, या अय्युहल इंसान या अय्युहन नास उबुदू, इंसानों बंदे बनो, बंदे। अल्लाह जी बंदे तो हैं, बंदे तो हैं। जवाब आता है कि मुआशरे से पूछ, तेरा बाप जब तुझे कहता है कि बंदे दा पुत्र बन, तो क्या उसे पता नहीं कि वो खुद बंदा है? मतलब यह है कि तेरे काम बंधु वाले नहीं, तेरा अकीदा बंधु वाला नहीं, तेरी जिंदगी में बंदगी नहीं, बहकावे हैं, शैतनत है, इबलीसियत है। जिसे तू हक कह रहा है वो हक नहीं है, जिसे तू इंसाफ कह रहा है वो तेरे लिए खैर नहीं है। अदल पे आ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मुलाकात में इंसानों के लिए रहमान का पैगाम, जिसमें भी इंसानियत होगी वो इंशाअल्लाह अपना वाफिर हिस्सा लेके जाएगा। खाना बना है, हर बंदा अपना अपना हिस्सा लेता है और वाफिर लेने की कोशिश करता है। एक
ट्रे होती है, एक परात होती है, 5-6 लोग बैठे होते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे मेरा हिस्सा दूसरों से ज्यादा मिले। जब दीन आता है, शरीयत आती है, वही आती है, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये मौलवियों का काम है? नहीं, ये सबका काम है। कब्र अपनी अपनी है, नशर अपना अपना है, हशर अपना अपना है, मीजान अपना अपना है, तराजू अपना अपना है। और याद रखिए, बात को बढ़ाने से पहले इस जुमले पे नोट कीजिए, दुनिया में कोई अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े हुए हैं और सारे लिखना जानते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब लिखी जा रही है वो तेरा मेरा अमलनामा है, और आप और मैं खुद लिख रहे हैं। और कयामत के दिन जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जानी है वो भी अमलनामा है। इकरा किताबक, जो लिखा है वो पढ़, जो लिखा है वो पढ़। लिख क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो? क्या मसल की गुफ्तगू आपके साथ कब्र में होगी? क्या ये गुफ्तगू आपके साथ नशर में होगी? क्या ये वंड आपके साथ मीजान में, हशर के मैदान में की जाएगी? नेवर, कभी नहीं। आपसे मनहज पे और अकीदे पे, अमल पे बात होगी। उथे अमला ते होने नहीं नखेड़े, उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े। किसे ने तेरी जात पूछनी, किसे ने तेरा मसलक पूछना। तैयारी कीजिए। पहली चीज, आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए पहला जुमला, आप हिदायत किसे समझते हैं, हक किसे समझते हैं? भाइयों, वही हक है, वही साइंस है, वही हक है, वही साइंस है, वही रहनुमाई है। जिसने बनाया है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। जिस बीबी ने खीर बनाई है उन्होंने नहीं पता भी किन्ने बंदियां दी है तो वंडनी किवें है ते आए किन्ने ने। बड़े बड़े सियाने लोग होते हैं जी, बरात ते बंदे ते सदे सी 100-200 आ गया तो किड्डे सियाणपुणे नाल कहंदे ने कि इदां करो, इन्हां नूं थोड़ा जिहा रस्ते च लेट करो, फिर जदों आउण ते इन्हां नूं यख ठंडियां बोतलां पियाओ, फिर नकाह खान नूं कहो झट ला देवे, जदों भुख दा टाइम लंघ जाए, भुख मरी होवे ते फिर खाना खोल दिया जे, ते ये 100 वाला ही 200 नूं पूरा आ जाना। असी कहने भाई बल्ले बल्ले, क्या बात है, बाबा जी का कितना तजर्बा है। तेरे बाबा जी का इतना तजर्बा है, बनाने वाले रब का तेरे का कोई इल्म नहीं, कोई मार्फत नहीं, वो कोई जान पहचान नहीं रखता। अला यालमु मन खलक, जिसने नजर ना आने वाली चीजें बना के, जिंदगी दे के, उनके खाने बना के, उनकी खुराक बना के, उनको तेरे बगैर अता कर रखी है। तू नाम रखना तो बड़ी दूर की बात, तू देख नहीं सकता। और वो लतीफ खबीर, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का मालिक, वो बना भी रहा है, चला भी रहा है। उसे नहीं इल्म के तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आइए, जितने मसलकों के लोग बैठे हो, जो भी नाम रखा है, मुबारक हो। पहला उसूल, असल रहनुमाई वही है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। जाओ दुनिया के किसी भी तर्जमे वाले कुरान में तर्जमा पढ़ लो। लोगों पैरवी करनी है, पीछे चलना है, इत्तिबा करनी है, पकड़ना है, दामन को मजबूती से थामना है, जिसको फॉलो करना है। इत्तबिऊ, ये नहीं क्या जेड़ा आवे ओदे पीछे लग जाओ, जेड़ा आवे ओदे पीछे। मेरा एक बेटा था, मैं उसको देखता हूं कि लाहौर में उतरा हूं, ये यादगार उस वक्त बसें उतारती थी। बस से जब उतरे ना तो 2-3 औरतें और भी खड़ी थी। उसने किसी का हाथ पकड़ा और कहने लगा मामा। जब उसने ये काम किया मुझे भी तकलीफ हुई, उसकी मां को भी गुस्सा आया, और जिनको वो मामा कह रहा था उन्हें भी ताज्जुब हुआ। एक कितों मुफत चाण के मैनू मां बनाई खड़ा है, क्या ख्याल है। अब किसी को देख के माइंड बना लेना कि ये मेरा है, इसका हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़, मुशाबहत में आ, किसी के भी पीछे लग जाओगे। सर जी ये तो कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता, कुत्ता पालिया हुआ ना, कुत्ता
सदो तुसी ते जावे किसी होर नाल, ये भी बर्दाश्त नहीं होंदा। ते बाबा जी मोहम्मद हुसैन साहब दी जिहड़ी सादकाबाद वाली मिसाल है भुल्ले नहीं होने तुसी। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं मुनव्वर फरमावे, जन्नतुल फिरदौस दा हिस्सा बनावे। वो अजीम हस्तियां उन्हां दे तजर्बे मुकाम और मर्तबे। अहलन व सहलन मरहबा जी वाले सलाम बिस्मिल्लाह जी माशाअल्लाह। भाजी कुर्सियां अगे भी आ गई। अहबाबे गिरामी इत्तबिऊ, आओ आज पता करें किसके पीछे लगना है। तो मैनू जवाब जरूर दिया जे पिंडी मांडला रुम झुम दे रहन वाले हो ते सियालकोट दे वासी हो, अपना कुत्ता पालिया होवे ना, सदो तुसी पुचकारो तुसी ते दुम लाउंदा किसी होर अल टुर जाए तो तुहानू ओहदे ते भी गुस्सा होना है। ते जे वो बाबा जी कहंदे ने कि मुर्गी बूहे च लैके ते कुड़ी ओहदे सिर ते पटोलियां पई मारी, तो मैं पूछे धीए राणी इहनू मारन क्यों नहीं है? कहंदे बाबा जी तुहानू नहीं पता। कहन लगे पुत्र जानवरां नू नहीं मारीदा। कहंदे जी तुहाडी नजरां च तो बड़ी शरीफ तुहानू लगन रही है, ते हुण सिर सुट के बैठी है। ये दाने साडे घरों खांदी है ते अंडा गवांढियां नूं दिंदी है। इंसान बर्दाश्त नहीं करता। बीवी मेरी हो, कबूल है कबूल है कबूल है, मैं कह रहा हूं। तो दाल मंगण हमसाया टुर जावे तो बंदे दी गैरत ओदा नहीं मर जाती। अल्लाह कहते हैं इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जिसने आसमान से तेरी रूह उतारी है, जमीन से तेरा वजूद बनाया है, तेरे लिए रहनुमाई भी आसमान से उतारी है, ओदे पीछे लगी। हर कहण वाले दे ते सोने मोने दे पीछे ना लग जाए। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तेरे रब ने क्या उतारा है वही उतारी है। क्या उतारा है? कुरान उतारा है। क्या उतारा है? आयात उतारी है। क्या उतारा है? तेरे मुस्तफा की जुबान पे अपना कलाम उतारा है। पैगंबर का फरमान वही, आपका फेल वही, आपका अमल वही, आपका किरदार उसवा कुदवा और सीरत वही। इनू मनना जे तेरे पीछे लगना जे सर है कोई विच वल डेंग वाली गल, कोई चिब शिब, कोई इधर उधर। इत्तबिऊ मा, जो भी उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह ने अगली भी वंड पाती, वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, अपने यार बना के, वली बना के, बेली बना के, सज्जन बना के, दोस्त बना के, मुहिब बना के, महबूब बन के अपने अपने मन मोहने चेहरियां दे मगर ते अपने अपने किरदारां दे मगर ना टुर पिया जे। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह क्यों? अल्लाह कहते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारा वली, तुम्हारे बनाए हुए हजारों औलिया वो भी मजबूर हैं कि वो मेरे पीछे लगे। वली वली नहीं बनता जब तक वही ना मने। की ख्याल है? वो ते वली बनया वही मन के। एक बंदे नूं ताकत आई रोटी खा के, ते तुहाडे लई भी रोटी होवे तो तुसी कहो जी नहीं मैं रोटी नहीं खानी, मैं बाबा जी ने रोटी खाधी हुई है, ना तू भूख मराउणी है, मेरे चप्पे ताकत आ जाऊ। ये तो नहीं अज तक किसी ने कहा। बाबा जी दे दरबार ते जाके, उरस ते जाके, मेले ते जाके देगां सारे लैन ला के खड़े होंदे ने, उत्थे कहण ना बाबा जी तुसी खाधियां साडे काम आउणगियां नहीं। अगर बुजुर्गों को विलायत, बुजुर्गों को इज्जत, बुजुर्गों को आबरू, मुकाम और मर्तबा, रब की कुर्बत मिली है तो उस वही से मिली। अहलन व सहलन मरहबा। हजरात, पहला उसूल ते गुर समझ आ गया जी कि किसी ने किसी जगह ते भी तेरा मसलक नहीं पूछना, ते जात नहीं पूछनी। तेरे से यह पूछा जाना है कि तूने जन्नत आने के लिए निसाब कौन सा लिया है। निसाब वही है तेरा निसाब। वही क्या है? या रब का कुरान है या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फेल और अमल है, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई दूजी राय को नहीं जे। पाकिस्तान च जिन्ने भी मसलक पाए जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है अंदरों बहुत अंदरों गहरा होकर जानना। दुनिया में 17 फिके पढ़ाई जा रही हैं, अमल किया जा रहा है। 4 मशहूर है, 17 रायजुल अमल है इस वक्त। सारे फकीहों ने, सारे फुकहा ने, तमाम मुहद्दिसीन ने, जुमला मुफस्सिरीन ने एक ही बात की है कि वही कुरान और सुन्नत का नाम है। और याद रहे
اگر کوئی بندہ آپ کو کل کو اٹھ کے کہے میرا سکا باپ ہو یا میں بھی ہوں کہ ویریو گل ٹھیک ہے، قرآن بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، توحید بھی حق ہے، میرے نبی کی حدیث بھی حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو انہوں تقلید ضرور کرنی پائے گی وگرنہ گزارا نہیں۔ اگر یہ بات حق ہوتی، میں نے دنیا میں جتنے دھکے کھائے ہیں نا اور جتنی بھاگ دوڑ کی ہے رب کے اس رستے تک، صراط مستقیم تلک پہنچنے کے لیے، شاید 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے دربار پہ ہاتھ دھر کے مرشد بنا کے میں بھی وہاں بیٹھا ہوتا اور آج سجادہ نشین ہوتا، مگر کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی کہ جناب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تلک، پہلی صحابیہ سے لے کے آخری صحابیہ تلک، اور میرے نبی کے سارے اہل بیت کے افراد سے لے کے ایک ایک فرد تلک پتہ کیا ہے کہ کسی نے تقلید بھی کری ایک دوسرے کی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چلے اتباع تھی نا، حضرت ابو بکر صدیق تو بہت بڑے امام تھے، حضرت عمر کتنے بڑے امام تھے جن کی تائید میں قرآن اترتا ہے، کتنے ان کے موقف تھے، کتنے انہوں نے مسائل بیان کیے، عمریات کی اور اولیات کی کتنی ایک لمبی لسٹ ہے، کتنے ان کے اجتہادات ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے با شرم با حیا کوئی شریعت، کوئی فقاہت، کوئی سمجھ ہونی تھی؟ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بات تقلید کی ہوتی تو کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، اگر میری سوچ، میری فکر، میری رائے کا نام دین ہوتا تو جو موزے پہنے ہوتے ہیں نا ان کے نچلے حصے پہ مسح کرنا زیادہ افضل ہوتا اوپر سے۔ نہیں سمجھے؟ موزے جو پائے نے جراباں تے صفا صفا تے یا فرش تے تھلواں حصہ لگن ڈیا نا تے ہاتھ گلا کر کے تے اوتھے پھیرنا چاہیے سی، تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے کیوں پھیریا ہے؟ کہندے نے کہ وہی دا کوئی اپنا ہی مقام ہے تے اپنا ہی درجہ ہے تے اپنا ہی اصول تے اپنا ہی ضابطہ تے اپنا ہی قاعدہ ہے۔ اس لیے گفتگو کا دوسرا نقطہ جو ہے کہ وہی قرآن و سنت ہے، اس میں من مرضی کو شامل مت کریں، ملاوٹ مت کریں۔ مکھن مکھن ہے اور خالص ہے، دودھ دودھ ہے اور خالص ہے۔ الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مرضی دیاں سوچاں پا کے انہوں دین تے وہی نہ آکھو، تیرے رب دی وہی بڑی خالص ہے۔ جس بندے کو یہ مل گئی مبارک ہو، وہ جنتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، وہ ہدایت پہ ہے۔ یہاں قرآن کے 2-3 رنگ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں وحی کے حوالے سے پہلا رنگ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ ام القرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ، روح پھونکنے والا بھی اکیلا اللہ، چلانے والا بھی اکیلا اللہ، موت سے ہمکنار کرنے والا اکیلا اللہ، موت کے بعد قبر میں لے جانے والا اکیلا اللہ، پوری کائنات کی ربوبیت کرنے والا رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے پہلی آیت، اور یہ ہے وحی، اور یہ ہے منزل من اللہ۔ اس کے اوپر سارے مسلک متفق ہیں، فاتحہ کو سبھی مانتے ہیں اور اس آیت کو سبھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کبھی پتہ کریں ٹھنڈے دل سے، صرف جو جہان گزرے ہیں نا ان کا پتہ کر لیں۔ عالم ارواح میں کسی بھی بندے کو روح کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کردہ نا کہ میں نو روح دا بڑا علم ہے، ایک ادھا پکا ہلکا جا چلا چھڑو اگر ممکن ہوئے تو جی عالم ارواح میرے نال جڑے آجے ذرا۔ کافی سارے مسلک کہیں دینے کہ روح آؤں دیاں نے جمعرات نو تے وابی کہیں دینے نہیں آؤں دیاں، صحیح کی ہے جی آؤں دیاں نے کہ نہیں؟ پائیو صحیح موقف ہے جے کہ روحاں ہر دن ہر رات 24 گھنٹے دے ہر منٹ دے سیکنڈ دے ہزارویں حصے چ آ بھی رہیاں نے جا بھی رہیاں نے۔ روحیں روزانہ آتی ہیں،
जब भी जिस शहर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, घर के जिस कमरे में मां के पेट में जो मां हामिला है, बच्चे की उम्र 120 दिन होती है, आसमान से आलम अरवा से रब फरिश्ते की ड्यूटी लगा के रूह को रवाना करके उसके वजूद में फूंक के उतार के वो रूह आ रही है। और हर दिन, हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में जहां जहां जिसका टाइम पूरा हो गया है, रूह को ले जाने वाले मलकुल मौत और उसके आवान और उसके साथी आए हैं और लेके जाते। ये है कुरान। सारे ही पक्खे वाल वेखण लग पे, कोई हुण इधर रूह वाल भी तवज्जो दो ना। रूहां आउंदियां ने, पहले तुसीं कहा सी नहीं आउंदियां, ये सिर्फ जुमेरात नूं आउंदियां ने। नहीं, जिन्हां ने आना है उन्हां दा आण दा सफर, जिन्हां ने जाना है उन्हां दा जाण दा सफर। लेकिन जो वापस ले जाई जाए वो दो जगह ले जाई जाती हैं। अच्छी रूह है तो आला इल्लियीन में है, सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़। अगर बुरी रूह है तो सिज्जीन में है। जो आला इल्लियीन में चली गई ओदा वापस आउण नूं दिल ही नहीं जे करदा। मेरे काफी सारे बेली ते क्लास फेलो ना यूरोप गए ने। साडा एक बेली सऊदी है ते माशाअल्लाह बड़ा ही अरसा हो गया ते उन्होंने कहीदा वापस आ जा, कहता इत्थे आके की करना है, पाकिस्तान च रखिया गई है, हालात ठीक नहीं, बिजली नहीं, आ नहीं, ओ नहीं, मैं इत्थे मौजा च। जो अच्छी जगह पे चला जाए फिर वो बुरी जगह पे आना पसंद नहीं करता। जो देहात को छोड़ के शहर चले जाए फिर वो देहातों में वापस खोलू में नहीं आया करते हजरात। हाँ हाँ, जो आला इल्लियीन में चले गए, जन्नतों में चली गई, अल्लाह की नेमतों में और अल्लाह के करम और अताओं में पहुंच गई, उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं। उन्हें पोशाकें भी मिल गई, सूट भी मिल गए, नेमतें भी मिल गई। उन्हें जुमेरात नूं आण के सिर्फ मौलवी नूं ही दसना है कि यार अब्बा हुणी राती आए ने ते उन्हां दी धोती कोनी सी, कल्ला कमीज सी यार, वो भी पाटा सी ते सूट पूरा भेजो। की ख्याल है? गुस्सा आवे ना तो जरूर करे आ जाए, लेकिन कदी थोड़ा जिहा सोचिया वे जी कुरान की कहंदा है ते मौलाना की कहण डे ने। वो जी रात अब्बा जी की रूह आई थी जुमे के खुतबे में, दुआ भी होगी, हुण तू देग भी चाड़ ते सदका भी दे। अब्बा जी दा हाल भैड़ा सी। आला इल्लियीन में रब की नेमतें, अल्लाह का करम, लौटने की जरूरत कोई नहीं। जो सिज्जीन में चली गई उथों यार वापस नहीं आउण दिंदे। मैं हर जिस दिन फैसलाबाद मुलाकात का दिन होंदा ना, कॉलेज तो गुजरते हुए देखना कई बच्चे रोण डे होंदे ने, कई औरतां बेचारियां परेशान, कई मावां। तो मैं पूछ लेना मां जी की होया जी? कहंदे मैनू अज बड़ी उम्मीद सी कि मेरा मुंडा ना अज दी पेशी ते ओनू आज़ादी मिल जाएगी, जेल चो जड़ा ना जी छुट जाएगा, ओदी सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हुई ते उन्होंने आउण नहीं दिता ते घर ते बड़ियां अड़ीकां सी। मैं ते जेड़ा सी आ करा के आई ते ओ ते अल्लाह तू याद रहे कि सिज्जीन में जाने वाले को छूट नहीं है, वापस नहीं कोई आने देता। आला इल्लियीन बाकी रह गया। कुरान क्या रहनुमाई करता है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यही मेरा मसलक है, यही मेरा मनहज है, यही मेरा दीन है, यही सब खालिस है, यही हक है। क्या है हक? बरेलवियत हक है, वहाबियत हक है, सुन्नियत हक है, वही हक है, वही हक है। और वही हक है जो तेरा रब कहे यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। महबूब बड़े बड़े वड्डे चल के आए ने ते कहंदे ने कि दसो कि ये रूह की है, ते इन्हां नूं दस दवो कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का सीक्रेट है, सीगा राज है, ये मेरे अल्लाह का मैटर और मामला है, मैं किसी को बताने वाला नहीं। ते अल्लाह जी ने नहीं जे दसिया। मलकुल मौत नूं आर्डर है, उन्हें करना है। रूह फूंकने वाले फरिश्ते को आर्डर है, उसने करना है। लेकिन ये है क्या? ये तेरा सिर्फ रब जानता है। साइंसदानों को आज ये सदी का तीसरा अशरा लग गया, बैठे हैं सीना जोड़ के, सर जोड़ के, दिमाग लड़ा के, कौमे वाले लोगों को लेके शीशे वाले बॉक्सेस में डाल के कि जिन्हां दी रूह ते चालू है लेकिन ना जिंदियां चो ना मरियां चो। सिर्फ ये चेक करते हैं, उन्होंने पहले वजन करते हैं ना, वेट कितना है, फिर उस तो बाद उन्होंने बक्से च पाउंदे ने, फिर फोरेंसिक कैमरे ला के ना कि मामूली जी भी कोई चीज एवें हिले ते ओदी भी वीडियो बन जाए। ते थक गए
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਰਾਜ਼ਕ ਕੈਮਰਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ੈ ਆਏਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਰੱਬੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਇੰਸਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਫਤਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਨਾਈਆਂ। ਵਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸੀਗਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਆਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਰੱਬੀ, ਜਿਸ ਅਕੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ की थी कि खुदकुशी की बोलते जी खुदकुशी है लफज, खुदकशी खिचण नूं कहंदे ने, ते खुदकुशी उन्हें की थी। उस तो पहले उहदियां तहरीरां वगैरह चुकियां ना, ते वो बेचारे ने अपने ना बड़े परेशानी दे माहौल लिखे। बड़ी सारी दुनिया ऐसी कि यार मैंने नहीं बचना, मेरे साथ ये मसला, ये मसला, ये मसला। आओ लोगो, जिस दिन तुम शिकवों पे आ जाओगे, तुम्हारी रूह का सुकून छिन जाएगा। रूह ऊपर से आई है, अगर इसका इलाज ऊपर से करवाओगे, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारा रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जिगर, तुम्हारी नजर, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी अकल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दानाई, एक एक चीज पर सुकून हो जाएगी। लेकिन जब तुम इसका इलाज बंदू से दुनिया में अहले जमीन से ढूंढोगे, अर्शे बरी के इलाज को पसे पुश्त डाल दोगे, फिर की करनगे? गाने सुननगे। रूह का सुकून मौसीकी में है। फिर गाने सुनेगा बेचारा ओदे। मैं क्या किनू सुनना है? कहता जी खेलवी नू सुनना, ईसा खेलवी नू। मैं क्या यार उन्होंने आप सुकून नहीं, सारी जिंदगी बेसुकूनी च रहा, वो तेनू सुकून किदां देगा? एक होर नू पुछया, कहता जी मैं तो राही नू सुनदा रहा। मैं क्या सारी जिंदगी ताने दे दे के इत्थे फिर के बुढ़ा हो गया है, तुहाडा की ख्याल है कि ओहदियां गल्लां च सुकून मिलेगा? एक होर उठिया, जी मैं मलका तरन्नम नू सुन के बड़ा सुकून मिलदा है। मैंने कहा जा उसकी जिंदगी पढ़, मलका तरन्नुम ने कितने दुख सहे हैं, जा पता कर। मैं जी लत्ता नु सुन के मैं क्या ओदे हालात जिंदगी पढ़, बेचारी किन्नी महरूमी नाल इस दुनिया तो गई है, उतों तेन